BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں صبا اعتزاز. اسلام آباد میں احتجاج سے پہلے سخت انتظامات. وفاقی وزیر احسن اقبال کا الزام کہ عمران خان اور ان کے اتحادی خون خرابہ کرا کر فوجی مداخلت کرانا چاہتے ہیں. وہ لہٰذا چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ایسا کوئی سازش کا سہارا تلاش کر رہے ہیں کہ غیر آئینی عمل ہو. عراق کے شمال میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مظالم سے جان بچا کر بھاگنے والے ہزاروں یزیدی کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور ہیکرز کی عالمی کانفرنس کے دوران دنیا کے چالاک ترین ہیکر اب کس مشن کا بیڑا اٹھانے کا سوچ رہے ہیں. پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے BBC کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چودھری برادران اور طاہر القادری کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں تاکہ فوج کو مداخلت پر مجبور کر کے اقتدار حاصل کر سکیں. اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے اعلان کو عمران خان نے مسترد کر دیا تھا. احتجاجی مارچ سے ایک روز پہلے انتظامیہ نے اسلام آباد کی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ملک میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اپوزیشن دارالحکومت میں احتجاج کر رہی ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شمائلہ جعفری نے ماضی کے احتجاجوں پر نظر ڈالی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے نتائج کیا نکلے. 1992 میں یہ ہیں بے نظیر بھٹو کے ٹرین مارچ کے مناظر، جس میں انہوں نے نواز حکومت کی مبینہ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا. ویسے تو پاکستان میں حکومتوں کو گرانے کے لیے احتجاجی سیاست کا سلسلہ 1956 میں سکندر مرزا کے خلاف تحریک سے شروع ہو چکا تھا، جس کا نتیجہ ملک میں پہلے مارشل لاء کی صورت میں سامنے آیا. تاہم 90 کی دہائی میں یہ سیاست اپنے عروج پر دکھائی دی، جس کا آغاز بے نظیر بھٹو کے اس مارچ سے ہوا. راولپنڈی اور اسلام آباد اس وقت سیکیورٹی اہلکاروں کے مکمل محاصرے میں ہیں، لیکن شہریوں کے لیے یہ منظر کوئی نیا نہیں. 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو نے اسی لیاقت باغ کو اس دور کی نواز حکومت کے خلاف اپنے لانگ مارچ کی حتمی منزل قرار دیا تھا، لیکن نواز حکومت اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ان کے حامیوں کو یہاں تک پہنچنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی. ہم یہیں پہ تھے، آنسو گیس چلی تھی، یہاں پہ پولیس اور ڈنڈے اور یہ دکانیں ٹوٹی تھیں اور سارا کچھ یہاں پہ، کئی بندے یہاں پہ زخمی ہوئے تھے. فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئی تھی، جس میں کوئی فوجیوں نے فائرنگ کی تھی، کئیوں نے نہیں کی تھی، کئیوں نے ڈیزالو کرتے. ہم فائرنگ نہیں کرتے. نواز شریف کی حکومت کے خلاف اس تحریک میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد بھی اپنے کارکنوں کے ہمراہ سڑکوں پر آ گئے. لیکن 92 کے احتجاج کو کامیابی کچھ ماہ بعد اس وقت کے آرمی چیف کی درپردہ آشیرواد سے ملی اور نواز شریف کو مستعفی ہونا پڑا. ایسی ہی صورتحال 3 برس بعد بے نظیر حکومت کے خلاف پیدا ہوئی، جب 1996 میں نواز شریف نے ان کے خلاف تحریک نجات کا آغاز کیا. ایک مرتبہ پھر تیسری قوت حرکت میں آئی اور بے نظیر کو اپنی پارٹی کے صدر فاروق لغاری کے ہاتھوں گھر جانا پڑا. پہلے بھی یہ ہوا، فوج کی مداخلت سے فیصلہ ہوا، اور آج بھی جو ہے نا لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عام طور پہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فوکس یہ ہے کہ اس سچویشن پہ حالات پہنچا دیے جائیں کہ فوج خود مداخلت کرے. 2009 میں نواز شریف نے عدلیہ بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا، جو گجرانوالہ میں اس وقت اختتام پذیر ہوا جب فوج کے سربراہ نے چیف جسٹس کی بحالی کی یقین دہانی کروائی. شمائلہ جعفری، BBC نیوز، اسلام آباد. عمران خان کے احتجاج سے متعلق اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی نے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال سے بات کی اور پہلے یہی پوچھا کہ حکومت کے خیال میں اس احتجاج سے یہ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ ایک پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا. اب 14 مہینے بعد اس طرح کے جھگڑے کھڑا کرنا، اس طرح کے سوالیہ نشان کھڑے کرنا، یہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے، اور اس کے پیچھے ایک سازش کی بو آ رہی ہے جس کا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب حصہ ہیں، جس کا مقصد ملک کے اندر ایک تو بدامنی پیدا کرنا ہے اور کسی غیر جمہوری راستے کی راہ ہموار کرنا ہے، اور دوسرا اس حکومت کی ان کوششوں کو ناکام کرنا ہے جو ہم نے 14 ماہ میں اقتصادی شعبے میں حاصل کی ہیں.
साजिश की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें और कौन कौन किरदार हैं इस साजिश के? देखिए, साजिश में वो तमाम अनासर हैं। आपके सामने काफ लीग के सियासी रहनुमा हैं और दीगर ऐसे मायूस रहनुमा हैं जिन्हें ये पता है कि अगले 100 साल भी इंतखाबात हों तो वो इंतखाबात से इक़्तिदार में नहीं आ सकते, और वो लिहाजा चोर दरवाज़ा तलाश कर रहे हैं। वो ऐसा कोई साजिश का सहारा तलाश कर रहे हैं कि गैर आइनी अमल हो जिसमें वो फिर वफाकी काबीना में और हुकूमतों में आके अपनी जगह संभाल सकें, वरना उनके लिए कोई अब जगह नहीं रह गई है पाकिस्तानी सियासत में। तो ये तमाम जो मुशर्रफ की एक टीम है वो शायद समझती है कि इस तरह हुकूमत पर वो दबाव डाल के या तो मुशर्रफ के लिए कोई रायत हासिल कर लेंगे और फिर इस हुकूमत की जो एक रफ्तार है और जो मोमेंटम है उसे तोड़ने में शायद वो कामयाब हो जाएं, और शायद वो एक ऐसा बहरान पैदा करने में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा हो और कोई गैर आइनी मुदाखला। तो मैं समझता हूँ ये उनके तमाम जो ख्वाब हैं ये अधूरे रह जाएंगे। चौधरी बरादरान है वो साजिश में शामिल है, इमरान खान शामिल है, ताहिरुल कादरी शामिल है, तो वो तो हुकूमत का तख्ता नहीं उलटते, हुकूमत का तख्ता तो फ़ौज उलटती है। तो आपके ख्याल में फ़ौज की वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? उनकी ख्वाहिश ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि जिससे फ़ौज की ज़रिए वो कोई मुदाखलत का दरवाज़ा खोलें जिससे इस हुकूमत को निकाला जा सके, जो कि गैर जमहूरी और गैर आइनी सोच है। और इंशाल्लाह इसमें वो इसलिए कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इस मुतालबे के हक़ में नहीं है। तो वो कैसे हालात होंगे एहसन इकबाल साहब जो ये इमरान खान पैदा कर सकते हैं जिससे फ़ौज को मुदाखलत मजबूरन करना पड़े? उनकी देखिए ख्वाहिश तो यही है कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी लाशों की सियासत की जाए, कोई ऐसा पैरालिसिस कायम किया जाए जिससे डेडलॉक हो जाए और गैर आइनी मुदाखलत का दरवाज़ा खुले। लेकिन हुकूमत ने जो हिफाजती इक़दामात उठाए हैं और पेशबंदी की है वो इसलिए की है कि हमें इतलात हैं कि इस मौके पर ये तो अपनी खेल खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दहशतगर्द अनासर है वो भी इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा के मुल्क के अंदर अंदरूनी डिस्टेबलाइजेशन पैदा करना चाहते हैं। तहरीक चलाना, एहतजाज करना ज़ाहिर है ये जमहूरियत का हिस्सा है। फिर ये इमरान खान का जो मार्च है, ये जो तहरीक है, ये गैर जमहूरी कैसे हो? देखिए, ये हर किसी का हक़ है, लेकिन आप मौसम देखते हैं जब ऑपरेशन अज़्ब हो रहा है, क्या आप ये महीना 2 महीना ठहर के नहीं कर सकते? ये आपका जमहूरी हक़ है। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल, जिनसे हमारे साथी आसिफ फारूकी ने बात की। अब देखते हैं इस मौजू पर आप क्या कह रहे हैं। अलीम रफ़ीक लिखते हैं, पाकिस्तान की तारीख में कमीशन का कभी फैसला नहीं होता बल्कि कमीशन मामले को दबाने के लिए होता है। तनवीर अख्तर लिखते हैं, अब मार्च का कोई जवाब नहीं पर इमरान को वज़ीर आज़म बनने की जल्दी है। बदर मिन्हास मुल्तान से लिखते हैं, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये नवाज शरीफ की सियासी चाल है। आप भी अपनी राय देना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया सफ़हात पर दे सकते हैं। अब दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। गजा में इस्राइली मिसाइल को नाकारा बनाने की कोशिशों के दौरान मिसाइल फटने से इटालियन और फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इस्राइल और हमास के दरमियान होने वाली लड़ाई में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें 1900 फ़लस्तीनी शामिल हैं। दोनों फरीकों के दरमियान आर्जी जंगबंदी आज ख़त्म हो रही है। तफसील के साथ आदिल शाहज़ेब, रिपोर्ट के कुछ मनाजिर आपके लिए इस्तराब का बाइस बन सकते हैं। अपने रिश्तेदारों की लाशें तलाश करने वाले इस जैसे बहुत से फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा से आम फ़लस्तीनी शहरियों के कत्ल की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी कारकुन मुख्तसर सीज़फायर के दौरान इसराइली हमलों में हलाक होने वालों को तलाश कर रहे हैं। सब्ज़ टी शर्ट में मलबूस 22 साला सालिम शुमाली भी मलबे तले दबी अपने प्यारों की लाशें ढूंढ रहा है। इतने में गोली की आवाज़ आती है। जब जख्मी सलीम मदद के लिए पुकार रहा था तो 2 मज़ीद गोलियों का निशाना बनने के बाद वो भी हलाक हो गया। इसराइल के ख़िलाफ़ आम शहरियों की हलाकतों के इल्ज़ामात में इजाफ़ा हो रहा है। इसराइल के बकौल हमास आम शहरियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब तक इन इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं। आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? इसराइल को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। हम अपना दिफा कर रहे हैं। इसराइल पर तनकीद के जवाज़ नाकाफ़ी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी आज ख़त्म हो रही है। इस जंगबंदी में तोसी के लिए काहिरा में गुज़श्ता कई रोज़ से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अब तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर और शिद्दत पसंदों की मामलत करने के हालिया बयान को बेबुनियाद करार दिया है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्लीम असलम ने कहा कि बदकिस्मती है कि ये इल्ज़ामात ऐसे वक्त में लगाए गए हैं जब पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ईरानी निजात रियाजीदान मरियम मिर्ज़ा खानी को ज्योमेट्री में उनके काम पर दुनिया में रियाजी के सबसे बड़े एजाज़ यानी कि फील्ड्स मेडल से नवाजा गया। इस अवार्ड को रियाज का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। फील्ड्स मेडल की तारीख में वो ये इनाम हासिल करने वाली पहली खातून है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इराक में दौलत इस्लामिया के अताब में आई यजीदी अक़लियत की हालत ज़ार, और मुस्तकबिल में क्या हैकर्स का जादू सर चढ़कर बोलेगा और अक्लमंद हैकर्स बनना चाहेंगे सब लोग। वेलकम बैक। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। फ्रांस के सदर ने इराक में दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों से निपटने के लिए कुर्दों को असलहा फराहम करने का ऐलान किया है। इससे कबल अमरीका ने भी ईरान को असलहा और फ़ौजी मदद फराहम करने का ऐलान किया था। इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के अहलकार कहते हैं कि 30,000 अफराद अब भी सिंजार पहाड़ी पर मौजूद हैं और ये लोग मौत के मुंह में हैं। ये अफराद दौलत इस्लामिया के हमलों के बाद अपनी जान बचाकर अपने इलाकों से भागे हैं। BBC की नामा निगार कैरोलिन वायट शाम की सरहद के करीब पहुंची और वहां से ये रिपोर्ट भेजी। आखिर ये मर्द और औरतें पहाड़ों से बज़ाहिर एक महफूज मकाम तक पहुंच गईं। कई सौ यजीदी ख़ानदान सरहद पार करके कुर्दिस्तान पहुंचे। उनके चेहरे उनकी तकलीफ और परेशानी की अक्कासी कर रहे हैं। ये लोग वो दिन नहीं भूल सकते जिस दिन दौलत इस्लामिया के जंगजू इनके गांव पर हमलावर हुए। गोरे कासा अपने 6 बच्चों समेत बचकर भागीं। मैंने तिनका जोड़कर 15 साल में अपना घर बनाया। दौलत इस्लामिया ने एक लम्हे में सब कुछ तबाह कर दिया और मेरी बहन को भी मार डाला। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हमें इन्हें पीछे छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। अब खबर मिली है कि वो बचकर पहाड़ों तक पहुंच गए हैं। किसी न किसी तरह यहाँ पहुँचने वाले ख़ानदान दौलत इस्लामिया के हमलों से तो बच गए, लेकिन अब इन्हें भूख और गर्मी का सामना है। महफूज मकामात तक पहुँचने वालों को सिंजार पहाड़ी पर रह जाने वालों का ख्याल सताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इन तक इमदाद पहुँचाई जा रही है और इनमें से कुछ को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन चंद रोज़ पहले एक हेलीकॉप्टर के गिरने से पायलट समेत कई अफराद हलाक हो गए थे। यहाँ आने वाले ख़ानदान शाम से गुजरते हुए कई दिन के पैदल सफ़र के बाद कुर्दिस्तान के इस निस्बतन महफूज इलाके तक पहुँचे हैं। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बाद आखिर इन्हें कुछ खाने पीने को मिला। इमदादी इदारे कहते हैं कि वो हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं, मगर डिमांड कहीं ज़्यादा है। कुर्दिस्तान में बनाए गए पनाह गुज़ीन कैंपों में 35,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। यहाँ अब जगह बाकी नहीं रही। जिन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली, वो नहीं जानते वो कहाँ जाएंगे। वापस जाना अब मुमकिन नहीं क्योंकि इनके गांव अब दौलत इस्लामिया के हाथों में है और इनकी किस्मत मशरक़ वस्ता के बदलते हालात के रहमो करम पर है। BBC News in Dahuk। BBC की नामा निगार कैरोलिन वायट की रिपोर्ट। BBCUrdu.com पर आप दिलचस्पी से क्या पढ़ रहे हैं? क्या दौलत इस्लामिया का खालिक अमरीका है? BBC की सुजैन कैनपुर का ये आर्टिकल बहुत पढ़ा जा रहा है और मट्टी के रंग के मौजू पर गैलरी भी बहुत दिलचस्पी से देखी जा रही है। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।
मुश्किल से कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन किसी बड़ी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक किए जाने की खबर ना आती हो। ये कंपनियां खुद को महफूज बनाने के लिए अब दुनिया के सबसे होशियार हैकर्स को तलाश करके उनकी खिदमत हासिल करना चाहती हैं। तो क्या अब हैकर बनना एक अक्लमंदी का कदम समझा जाए? हमारे टेक्नोलॉजी नामानिगार डेव ली लॉस वेगस के शहर यही पता लगाने गए। सारी शराब पियो और तमाम चीज़ों को हैक करो, ये अल्फाज इन लोगों के लिए असूल हैं। ये हैकिंग कम्युनिटी के सबसे होशियार और ख़तरनाक सोच रखने वाले लोग हैं और हर साल डेफकॉन के नाम से एक इजलास मुनक्किद करते हैं। हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हैकर्स उसे दरपेश ख़तरात और उसके हल की तलाश के लिए यहाँ जमा होते हैं। लेकिन ये जगह हैकिंग की सकाफ़त का जश्न मनाने के लिए भी है। आपको बियर मिलती है। इसका टेम्परेचर बेहतर बनाने के लिए हम वो तरीके इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास हैं। यहाँ जमा होने वाले लोग कई बरसों से छुप कर मिलते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हैकर बनने के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। क्या ये इजलास आपको .com बबल के आगाज़ जैसा महसूस नहीं होता? इसमें उसी तरह का एक जोश है। सबके पास कुछ न कुछ करने के लिए है, लेकिन ये अच्छा वक्त कब तक रहेगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये वक्त हमारा है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलें इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी गैर महफूज है और डेफकॉन में आने वाले ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इन ख़तरात का पता करने में गुजार देते हैं। और अब जब पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है तो इन लोगों के हुनर की मांग कई गुना बढ़ गई है। सबके पास कोई न कोई आइडियाज़ हैं और पूरी दुनिया हमें मुलाजमत देना चाहती है। अब तमाम काम ऑनलाइन होते हैं, इसलिए उनको हमारे हुनर की ज़रूरत है। हैकर्स की अगली नस्लें पहले से ही ये हुनर सीख रही हैं और ये फैसला इनके लिए दुरुस्त साबित हो सकता है। जब तक टेक्नोलॉजी और मवासलात पर हमारा इन्हिसार बढ़ रहा है, लगता ऐसा है कि मुस्तकबिल में हैकर्स ही सबसे ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। टेक्नोलॉजी के नामानिगार डेव ली की रिपोर्ट। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो आप हमारे नए YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और इनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @sabaa-itazaz। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा bbcurdu.com पर जाकर ताज़ा तरीन तज्ज़िये, तस्वीर और तबसरे ज़रूर देखिएगा। सैरबिन की टीम सबा-ए-इत्ज़ाज़ को इजाज़त दीजिए।